We first make the first HTML file is page33.html and the CSS file is page33.css. So let's start. The first we have first to make the boilerplate. After that we have to write the header file, in the head navigation bar. In navigation bar we have to write h2 sprem as title of the website. इसके बाद हम लाइव सर्वर को ओपन कर लेते हैं. लाइव सर्वर को ओपन करने के बाद ये रहा. इसके बाद यूएल के अंदर li एंकर टैग s, इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट क्योंकि हमको 5 यहाँ पर होम कोर्स, यहाँ पर अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड लास्ट इज क्लाइंट. Now we link the CSS file, link paste page33.css. अब यहाँ पर हम कुछ CSS यहाँ पर अप्लाई करते हैं. फर्स्ट दे मार्जिन 0 पैडिंग भी 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली, and the next navigation display flags, justify content, a space between, align item center, background, the background color is equal to, first we have to write and changing the color. यहाँ पर हम कलर को चेंज करते हैं something around this. Control S, save. This is best. Padding 30 pixel. Not padding left. Padding left, that is 4%, and padding right 4%. This is, and after that nav ul display flags, After that we have to write nav ul li
margin 0 pixel and 8 pixel. List a style none. ULA text and decoration none. Padding should be 8 pixel or 40 pixel. This is correct. Font size 18 pixel, and something is missing now. Here padding should be 30 pixel. Now this is correct. यहाँ पर padding 30 pixel कर दिया. एंड आफ्टर दैट इसके बाद इसका कलर हम कुछ चेंज कर देते हैं. कलर शुड बी चेंज. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज. यहाँ पर हमारा सब कैपिटल लेटर में. आफ्टर दैट ऑन hover effect, hover background color, background color is equal to first pink. This is, and after we have to change the RGB color. Now this is correct. Here font color is equal to white. Font color on hover करने के बाद इसका font का कलर चेंज हो जाए white में. और इसका border radius भी 5 pixel. Yes, border radius 5 pixel इसका. After that this is correct. Now we have changed the style of H2. हम टाइटल के स्टाइल को भी कुछ चेंज करते हैं. Nav H2 because here the nav H2 यहाँ से. इसका font size, इसको हम font size बढ़ा देते हैं 28 पिक्सल. This is first 30 pixel. Now this is correct. This pixel and 30 pixel. Font family monospace. Now this is good. Color should be first pink and its color should be changed. Now this is good. 250. Now yeah, this is good. Now we have to change in the sum. Now और चलिए यहाँ तक तो हमारा वेब पेज कुछ अब अच्छा लग रहा है. चलिए अभी इसके बाद कुछ हम बॉडी में इसको हम कुछ करते हैं. तो यहाँ पर एक div, इसका क्लास हेड H2 explore the coding.
एक्सप्लोर द कोडिंग div डॉट लाइन, क्योंकि बीच में एक लाइन आ जाए। और उसके बाद h4 लेट दी स्टार्ट, लेट दी स्टार्ट। नाउ वी हैव टू, चलिए हम देखते हैं कि कुछ क्या हो चेंज हुआ। ये नाउ h1 वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड नाउ, एंड सम दिस इज नाउ। अब यहाँ पर हम इसमें कोई CSS अप्लाई करते हैं। CSS अप्लाई, वी हैव टू फर्स्ट इंक्रीज द, वी हैव टू हेड को हम इसका मार्जिन लेफ्ट 180 पिक्सल। दिस इज गुड। मार्जिन टॉप से मार्जिन 180 पिक्सल। दिस इज गुड, बट दिस वुड बी 150। हाँ, देन अब यहाँ पर ये सही है। चलिए, हेड के बाद इसका हेड h2, इसका फॉन्ट साइज 42 पिक्सल। या एक्सप्लोर द कोडिंग, इसका कलर में कुछ चेंजिंग कर देते हैं। COLO कलर pink, because pink is my favorite color, but this is not good now. Yeah, this will look fantastic. And head h4, font size 21 pixel. This is good. 21 pixel. Head h1, इसका font size 59 pixel. No, this is ठीक है। और अभी यहाँ पर हमने एक डिव लिया था, उसका क्लास दिया था लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आ जाए तो उसको लाइन कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन, और इसका विड्थ को हम कर देते हैं फर्स्ट 120 पिक्सल, 120 पिक्सल। इसका हाइट कुछ दे देते हैं, हाइट शुड बी 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। और इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड color should be pink. Now this is correct, but here should be some changing. यहाँ पर चेंजिंग आएगा और इसके विड्थ को हम बढ़ा देते हैं। Now this is looking good, but इसका लेंथ को और बढ़ा देते हैं 340। हाँ, अब सही है। बैकग्राउंड कलर भी मैच किया। चलिए, एक्सप्लोर द कोडिंग, लेफ्ट द स्टार्ट। अब ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं बटन के लिए यहाँ पे डिव के ही अंदर बटन
BUTT बटन ओ बटन डॉट BTN, इसका बटन का क्लास हो जाएगा BTN। इसमें मैं ले लेता हूँ बाय नाउ। दिस इज सम, यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई करते हैं बटन में। इसका पैडिंग में कुछ, सबसे पहले हमने उसका बटन में हमने अप्लाई करते हैं पैडिंग। सबसे पहले पैडिंग आ जाए इसका 6 पिक्सल और 8 पिक्सल। मार्जिन समथिंग, मार्जिन टॉप से मार्जिन इसका आ जाए 30 पिक्सल। नाउ दिस इज गुड। और इसका कलर, बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ रेड नहीं, पिंक, क्योंकि सभी पिंक में है तो पिंक। इसके कलर को मैं डार्क कर देता हूँ। चलिए, इसका कलर शुड बी वाइट, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। नाउ दिस गुड। बट इसका पैडिंग 8 पिक्सल और इसका, हाँ अब सही है। कलर, इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज, हाँ सही है। इसका फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज शुड बी इक्वल टू 18 पिक्सल। नाउ दिस इज नाउ बॉर्डर रेडियस, इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। नाउ बॉर्डर यहाँ पे इसका करता हूँ 0 पिक्सल। नाउ दिस इज गुड। बटन, चलिए यहाँ तक को हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, रिस्पॉन्सिव। चलिए, तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे इसको बनाया जाए, चलिए। नाउ वी मूव टू द HTML पेज and first we have to write the media query, media max with 800 pixel. Now we check now nav का UL डिस्प्ले हो जाओ डिस्प्ले ब्लॉक। नाउ चेक, जब 800 पिक्सल इसका विड्थ हो जाएगा तभी इसका डिस्प्ले नेविगेशन का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। चलिए, जैसा ही 800 पिक्सल होता है तब वो इसका विड्थ, उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक होने के बाद इसका मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर में देता हूँ, पिंक ही देता हूँ। चलिए, पिंक मैंने ले लिया। इसका पोजीशन मैंने ले देता हूँ फिक्स्ड, क्योंकि पोजीशन इसका फिक्स्ड है। और जैसा ही मैंने पोजीशन का फिक्स किया, टॉप से भाई साहब अब नीचे चला है 90 पिक्सल। 90 पिक्सल टॉप से, और राइट से अब भैया चलाएं 0 पिक्सल, क्योंकि हमको राइट में
करना था। राइट से इसका विड्थ आ जाए, चौड़ाई, तो इसका 60% आ जाए, 60%। और ये जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ गया। चलिए, अब भाई साहब का जो हाइट है, ये हाइट चला है 90 VH, इतना लंबा। जैसे ही इसका भी 800 से पार हो, कि ऐसा कुछ दिखने लगे, लेकिन इसमें पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। चलिए, नेव के बाद यूएल के बाद अलाइन, इसका मैं मार्जिन 40 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। नाउ दिस विल become color should be 334 गुड। एंड इसका फॉन्ट वेट भैया भाई साहब चल रहा है बोल्ड में, लेकिन इसका मुझे बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मैं चेंज करता हूँ, कहाँ तक आ जाए। Now this is good, awesome. लेकिन इसका जो बॉर्डर टॉप का जो लेफ्ट रेडियस है, यह चला है 20 पिक्सल, यहाँ पर कर हुआ, ठीक है। और इसका मैं बॉट शैडो कुछ कर देता हूँ क्योंकि और अच्छा लगे। शैडो 0 पिक्सल एंड 11 पिक्सल पिंक। Yeah, this is looking like a good 240. Now this is correct now. Yeah, it's good. But now we have to make, यहाँ पर हमें एक मेन्यू बनाना है, क्योंकि जब यहाँ पर हम क्लिक कर दें तो ये ऐसा हो, वरना नहीं। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको गूगल में सर्च करना है फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करने के बाद हमें जाना है लाइब्रेरी फंक्शन में, और इस लिंक को हमको कर देना है कॉपी। इस लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है लिंक और कंट्रोल V से पेस्ट। नाउ यहाँ पे हमें लिखना है ऑन लिंक, लिंक के बाद मैं बैकग्राउंड को चेंज लेबल, ठीक है, लेबल। इसका क्लास में कर देता हूँ मेन्यू। इसको मैं अच्छी जगह से स्टोर कर देता हूँ। Now this is now
करेक्ट पोजीशन। लेवल मेन्यू, चलिए लेवल मेन्यू के बाद इसको हमें क्लास बार्स, ऐसा ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा मेन्यू बटन का एक लोगो आ जाता है। लोगो आने के बाद मैं सबसे पहले लोगो के साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि लोगो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो मेन्यू पर आई तो मैं इसका फॉन्ट साइज को कर देता हूँ 21 पिक्सल। तो अब ये मुझे हल्का सा बड़ा दिखाई देगा। चलिए, और इसके बाद हमें बनाना है एक इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। इसका मैं आईडी डाल देता हूँ क्लिक। यहाँ पर मैं चेकबॉक्स बन गया है। चलिए, इस आईडी को मैं इस फॉर्म में पुट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस मेन्यू को पर क्लिक करता हूँ तो इस पर आ जाए, और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हट जाए। मतलब कि इस चेकबॉक्स का कमांड इसके पास चल जाएगा। जब मैं इस मेन्यू को क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर चेकबॉक्स फिल हो जाएगा, और इस पर मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से चेकबॉक्स अनक्लिक हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ ऐसा है। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई करता हूँ। CSS अप्लाई ये है कि जो हमारा क्लिक है भाई साहब, वो उसका फॉन्ट साइज क्यों डिस्प्ले नन हो जाए, दिखाई ही ना दे हमको, सिर्फ ये दिखाई देगा। लेकिन इसको भी हमको हाइड करना है, लेकिन अभी नहीं, कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये आ जाए, फिर मैं इसको करूँ कि ये बाहर जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस मेन्यू का मेरे कर्सर पॉइंटर में कर देता हूँ, पॉइंटर। चलिए, नाउ व्हेन जब हैशटैग क्लिक को जब चेक अगर हो जाता है तो हम राइट को 100, इसको मैं 0 नहीं, इसको मैं सबसे पहले 100 डिग्री कर देता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आ जाए, नहीं करता हूँ चल जाए, आ जाए चल जाए, आ जाए चल जाए। देखिए, जब मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हट गया, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। हाँ, इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ। ऐसा है, छोटा किया, ये आ गया। जब मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ हट गया, ये आ गया। तो मैं इसको हम राइट को, क्योंकि पीछे से लाएंगे तो राइट को -100% कर दिया जाए, और जब इसको मैं करूं तो यह आ जाए 0%। देखिए, जब इसे क्लिक करता हूं तब आएगा, और डबल क्लिक करता हूं तो वापस चल जाएगा। लेकिन ये इतना फास्ट हो रहा है तो इसका मैं ट्रांजिशन देता हूँ 0.4 सेकेंड। ठीक है। चलिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि ये इसको हमको डिस्प्ले को ब्लॉक करना है, ये डिस्प्ले को नन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन आइकन था, इसको मैं डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, तो हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अरे
यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी मेरा हट गया। यहाँ पर जो हमारा मेन्यू का जो आइकन था वो भी हट गया। तो इसको हम वीडियो के क्वेरी में जाके मेन्यू फाइल डिस्प्ले ब्लॉक किया, आ गया। Now we have to change the sum। इसको भी मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। नेम में डॉट हेड, क्योंकि यह इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। एक्सप्लोर द कोडिंग को लेट द स्टार्ट को, तो उसके लिए हमको कैसे एक्सेस होगा, हेड। सबसे पहले हमको हेड में जाके उसके पैडिंग को चेंज, मार्जिन जो लेफ्ट है उसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। लेफ्ट से मार्जिन 30 पिक्सल आ जाए, और भाई साहब राइट मार्जिन राइट आ जाए, मार्जिन राइट चलाए 5 पिक्सल। और दिस इज गुड। इसके कुछ फॉन्ट साइज को भी मैं कम कर देता हूँ। H2 का जो फॉन्ट साइज है उसका फॉन्ट साइज चला है 35 पिक्सल। नाउ दिस इज गुड। इसका जो हेड का जो H1 था उसके भी फॉन्ट साइज को मैं कम कर देता हूँ। फॉन्ट साइज को मैं कम कर देता हूँ 54 पिक्सल देखता हूँ। दिस इज नॉट गुड, गुड पोजीशन। नाउ फैंटास्टिक। नाउ तो हमारा ये अब नेविगेशन बार का कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक ये इसी के लिए जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ एकदम रिस्पॉन्सिव बन चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये वापस चला गया ना। दिस इज़ नॉट गुड पोजीशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।